अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनार गुलज़ई है और मैं पार्टनरशिप लीड हूँ एट पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन पैफला। वेलकम टू द 23rd एपिसोड ऑफ पैफलांसर्स। हमारे पिछले 22 एपिसोड्स ऑफ वेबिनार्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और हमने फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत ही यूनिक टॉपिक्स पर बात की है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेसबुक, मेटा, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, फिनटेक्स और एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स ने अपनी एक्सपर्टीज और इनसाइट शेयर की थी। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक टॉपिक पे बात करेंगे और मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वेबिनार सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है। हमारे मर्द हजरात जो स्टार्टअप्स और ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, वो भी इस वेबिनार से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम विजन टू इनोवेशन, हाउ बुक माई स्पॉट इज ट्रांसफॉर्मिंग ब्यूटी सर्विसेज। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने उन्हें इनवाइट किया है जिनका विजन बुक माई स्पॉट था। हुमा खान, द को फाउंडर ऑफ बुक माई स्पॉट। प्लीज ज्वाइन मी वेलकमिंग हर। Assalamu हाय alaikum. हुमा, हाउ आर यू? I'm good. How are you? हेलो। Can you सो hear me? हुमा, आप सबसे पहले, या यू आर ऑडिबल नाउ। तो हुमा, स्टार्टिंग द वेबिनार, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि हु इज हुमा खान। आप क्या करती थी, क्या करती हैं, अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करवाएं। Okay, so basically मैं अगर बैकग्राउंड बताऊं अपना वर्क रिलेटेड कॉर्पोरेट रिलेटेड I did ACCA and I started working in ERP consultancy. It was luckily that I ended up in ERP and IT, and that's when I started exploring this journey as well. वहाँ से I've worked in various organizations. And I've worked in Systems Limited. I worked in A. Ferguson, KPMG, Avinat. Other than that, I enjoy traveling a lot. That is one thing that I really like. And या from that, watching movies and following all the technology related stuff. ओके, सो हुमा, आप ये बताएं कि आपका इतना ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि सिस्टम लिमिटेड और इस तरह की कंपनीज में आपने काम किया, तो आपको बुक माई स्पॉट का आइडिया कैसे आया जहन में? क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन थी जब आप इस ऐप को डेवलप करने का सोच रही थी, या इसका रीज़न क्या बना? Okay. So, like I said, I was working in technology space. I was working in digitalization for SMEs, ERP consultancy, digital transformation, and in sub cheezon mein I was working. Book My Spot basically started from my own problem, and considering my work experience as well. कि salons में appointment book करानी है due to the work schedules, you're busy, you're occupied, at times you neglect yourself. And that's when I realized that अगर कभी appointment book करनी है and I'm busy somewhere else, and with work I used to tend to miss out my appointments, used to miss out booking at times, and at times even after booking कोई reminders या scheduling नहीं थी. So that's when I thought that there should be a platform where one can see all the services, browse different discounts and deals available, book appointments जहाँ पे हमें reminder हो, and you don't have to like wait at the salon. Because अभी currently क्या हो रहा होता था कि आप salon जाते थे, then you wait, आपका बहुत ज़्यादा time उसमें फिर loss होता था. That's when I started it. And in Pakistan, we have been talking about digitalization all along, but I was seeing that nobody was focusing on this particular segment. We have been talking कि women inclusion होना ज़रूरी है, financially women should be included, but this particular segment जो कि बहुत highly dominated है women से, people were not focusing on this. We had a lot of other bike riding services, logistics, car services, but not this particular. That's when I started off with it. I saw that it was not just my problem, but it was being faced in my circle, in my work, with my work colleagues as well, and that's why I decided कि नहीं ये करना चाहिए. जी, डेफ़िनेटली आप ये जो प्रॉब्लम रेज़ कर रही हैं, ये हर ख़वातीन फ़ेस करती है पाकिस्तान में, एंड आई होप नेशनली, इंटरनेशनली, हर जगह पे। मुझे बताएँ, ये बुक माई स्पॉट का सेलिंग पॉइंट क्या है? और कौन-सी
ऐसी चीज़ें इस ऐप में जो मार्केट में दूसरी सर्विसेज से इसको डिफरेंट बनाती है? Okay, so what we're doing is it's not just like salon appointment booking app. We are empowering the salons. We are enabling the customers as well as the salons and aesthetic clinics simultaneously. Um, it's providing you the convenience कि आप घर से बैठे हुए किसी भी टाइम पे, even if the salon is closed, आप appointment book करा सकते हैं. You can see, where are the best discounts and deals available. There are so many salons and aesthetic clinics out there who are providing top-notch services, but people don't know about it. And there Yeah. that is where the technology helps कि आप किस तरह के से लोगों तक अपने आप को रीच आउट कर सकते हैं. And that's what we focused on, and we talk to the salons that you do your work on which you are best at, and we are going to support you and help you in reaching out to more customers, engage with your audience. And similarly, audience का भी एक trust develop होता है when they see that instead आपके पास fake reviews के authentic reviews are there for all the services, to so that they can pick and choose the services. So yeah. या डेफिनेटली। तो हुमा, जब आप लोगों ने ये ऐप लॉन्च किया तो ऑडियंस का रिस्पांस कैसा था? और नाउ अब जब ये इतना ज़्यादा लोगों में रीच आउट कर चुका है तो ऑडियंस का फीडबैक कैसा है इस सर्टेन ऐप को लेके? Okay, so the feedback has always been good from both ends, customer end as well as the salon side. When we started reaching out to the salons, obviously we had to. There were few salons jinko obviously they were tech savvy, but there was a lot of other salons in it. We had to even teach them and educate them about how it is going to help and support their businesses, और उन्हें सपोर्ट किस तरीके से करेगा बिजनेस में. अदर देन दैट, कस्टमर साइड पर अगर हम बात करें तो कस्टमर साइड पर भी इट्स हेल्पिंग आउट इन रीचिंग द कस्टमर्स. हमारे पास ऐसे भी कस्टमर्स आए हैं जो वो बाहर होते हैं, देन दे बुक फ्रॉम बुक माई स्पॉट एप्लीकेशन अपनी फैमिली के लिए जो यहाँ पर हो. ईद के टाइम पे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारी जो है लोगों ने सिर्फ बुक माई स्पॉट पे कांटेक्ट किया. वी डोंट हैव टू वेट एट द सैलून, तो हमें वो सैलून बताएं जहां हमारी अच्छी क्वालिटी की सर्विस भी मिल जाए. वी डोंट केयर अबाउट द प्राइस, बट जहां पर हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े. तो उस तरीके से हम लोगों ने कस्टमर्स के फीडबैक्स रिकॉर्ड किए. एंड इवन अभी भी हम कस्टमर्स के फीडबैक्स ले रहे होते हैं और उन फीडबैक को इनकॉर्पोरेट, ताकि हम और फर्दर इम्प्रूव करें. लाइक हमारा जब भी हमारे पास अपॉइंटमेंट बुक हो रही होती है, हम कस्टमर से फिर आफ्टर दी अपॉइंटमेंट एक रीच आउट करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. नॉट जस्ट कि एक सैलून पे जाने का एक्सपीरियंस, बट बुक माई स्पॉट के थ्रू बुक करा के उनको क्या एक्सपीरियंस रहा. या सो मतलब आप लोग को अभी तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है ऑडियंस से। यस, डेफिनेटली. और हम लोग ने एक और भी चीज़ करी है, हम लोग कॉर्पोरेट्स के साथ भी हमने रीच आउट कर दिया. बिकॉज हमारा एक बिलीवेबिलिटी है कि एट द जी। एंड ऑफ द डे हमारे पास जो कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कफोर्स है, वो एट द एंड एवरीबडी गोज़ टू द सैलून, दे टेक केयर ऑफ देम, जेंडर रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, मैन फीमेल. हम सैलून्स को रीच आउट कर रहे होते हैं क्योंकि इट्स नॉट जस्ट कि आप सैलून जाएं और जस्ट गेट योर हेयर कट डन. बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कामों में इतना बिजी होते हैं. इवन द फ्रीलांसर कम्युनिटी ये घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, राइट. बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें, फील कराएं, अपना सेल्फ केयर पे फोकस करें. लॉन्ग मीटिंग्स हो रही होती है, लॉन्ग स्केड्यूलिंग्स, तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं कि हम सेशंस भी कराएं एम्प्लॉयज़ के साथ, स्टाफ के साथ, मेंबर्स के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ, जहाँ पर हम अपने पार्टनर सैलून्स को, एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, उनके साथ सेल्फ केयर सेशंस करवा रहे होते हैं, सो दैट पीपल get more knowledgeable and
feel good about how they can take care of themselves. कि सिर्फ बात ये नहीं है कि आप सैलून ही जाकर अपना ख्याल रख सकते हैं, देर आर सर्टेन थिंग जो आप घर बैठ के भी अपने ये कर सकते हैं। तो वो हम उन सेशंस में बता रहे होते हैं कि बेसिक बेसिक लेवल पे किस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं टू लुक गुड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और अगर आप अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा फील होगा एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट इवन मीटिंग्स में जाने के लिए भी और लोगों क्लाइंट डीलिंग्स के लिए भी, और ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होगा आपके कामों पे भी। या दैट्स ट्रू। मेरा एग्जैक्टली अभी यही क्वेश्चन आया था, आप जब मुझसे बात कर रही थी माइंड में, कि बुक माई स्पॉट क्या लड़कों की और लड़कियों की दोनों की प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखता है, या फिर ये सिर्फ वुमेन सेंट्रिक है? क्योंकि बहुत से लोगों का जो है ये क्वेश्चन होता है किसी भी ब्यूटी ऐप से रिलेटेड। बिल्कुल, हम लोग ने दोनों पे फ़ोकस किया हुआ है। काफ़ी लोगों को लगता है, सैलून सुनकर लगता है कि नो इट्स नॉट, बट हम लोगों ने दोनों पे फ़ोकस रखा हुआ है। हमारे जितने भी सैलून्स हैं उसमें वी हैव मेंस सैलून्स एज़ वेल एज़ फीमेल सैलून्स। वी फ़ोकस अ लॉट ऑन या मेंस ग्रूमिंग एज़ वेल, क्योंकि वो एक एरिया है जो बहुत लोग काफ़ी नेग्लेक्ट करते हैं, बट आई फ़ील अब पाकिस्तान में भी वो ट्रेंड एक चेंज हो रहा है। मेन हैव स्टार्टेड फ़ोकसिंग ऑन देयर सेल्फ केयर एज़ वेल। तो जब हम कॉर्पोरेट सेशंस भी करवा रहे होते हैं तो हम वहाँ पर दोनों एक्सपर्ट्स को लेकर जाते हैं, ताकि वो जो एक माइंडसेट होता है कि नहीं सेल्फ केयर और पर्सनल ग्रूमिंग और सैलून सिर्फ नहीं वुमेन्स के लिए ही है, तो वो एक हम जो एक स्टिग्मा है वो रिमूव करें। इवन अगर आप मेंस की बात करें, ऑल मेन गो फॉर अ हेयर कट, बियर्ड ट्रिमिंग एंड एवरीथिंग। तो उसी को कंसिडरेशन में रखते हुए वी फोकस ऑन अदर एम्बिट्स एज वेल। दैट्स ग्रेट। मुझे बताएं कि आप लोगों ने जो है वो किन एरियाज के सलोन्स को टारगेट किया हुआ है? मतलब आप लोगों ने जिन सलोन्स के साथ कोलैबोरेट किया है वो ज़्यादातर आप लोगों का टारगेट एरियाज क्या हैं? अच्छा, हम लोग ने जब लॉन्च किया था हमने स्टार्ट करा था ऑब्वियसली डीएचए क्लिफ्टन वाली साइड से, क्योंकि वहाँ पर सैलून्स को समझाना रिलेटिवली इजी था उस टाइम पे जब हम लॉन्च कर रहे थे। बट देन वी सॉ हमें बहुत ज़्यादा रिस्पांस दूसरे और भी बहुत सारे एरियाज से मिला। वी हैव सैलून्स फ्रॉम गुलशन, फ्रॉम जौहर, पीसीएचएस, नॉर्थ नाज़िमाबाद, एंड नॉट जस्ट दैट, इवन कस्टमर्स का भी रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा आ रहा होता है इन ऑल दीज एरियाज। एंड इवन कस्टमर्स भी हमें रिकमेंड कर रहे होते हैं, गेट दिस पर्टिकुलर सैलून ऑन बोर्ड एज वेल फॉर अस। तो उस पे भी हम लोग फिर काम कर रहे होते हैं। देन वी रीच आउट टू द सैलून्स कि आप लोग की मतलब बहुत डिमांड है, यू शुड कम ऑन बोर्ड विद अस। तो या तो वी आर एक्सपेंडिंग, अभी करंटली हम कराची में हैं, अब हम लाहौर और इस्लामाबाद में भी एक्सपेंड करने का हमारा लेटर ऑन प्लान है, क्योंकि वहाँ से भी हमें सैलून्स हैव स्टार्टेड रीचिंग आउट। सो इन द कमिंग मंथ्स वी विल डेफिनेटली बी एक्सपेंडिंग देयर। या लोग सलोन ओनर्स के साथ कोलैबोरेट कैसे करते हैं? ओके, सो वी ब्रिंग देम ऑन बोर्ड, हम उन्हें ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं। अब सैलून इट्स, और हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ सैलून्स नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म पे एस्थेटिक क्लिनिक्स भी हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसर्स ब्यूटी एक्सपर्ट्स भी हैं। बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमें सबको प्रोवाइड करना है एक प्लेटफॉर्म, ताकि वो अपने आप को मार्केट कर सकें, दे कैन ग्रो। तो जब सैलून ऑन बोर्ड होता है हम उनके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इनिशियली, देन हम उनसे उनकी सारी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं वेयर दे आर स्ट्रगलिंग, क्या क्या चीज़ों पे उन्हें फोकस कराना है, किन सर्विसेज वगैरह पे, एंड देन वी वर्क अकॉर्डिंगली विद देम। हम मीटअप्स ऑर्गेनाइज कराना हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, मंथली मीटअप्स जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इट्स अ कम्युनिटी स्पेस एज वेल। इट्स नॉट कि सिर्फ सैलून से हम करें, सैलून वी कनेक्ट। उन मीटअप्स में क्या हो रहा होता है, डिफरेंट सैलून ओनर्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट ब्यूटी कंपनीज आ रही होती हैं, ब्यूटी ब्लॉगर्स आ रहे होते हैं, एंड इवन कॉर्पोरेट के डिफरेंट एम्प्लॉयज आ रहे होते हैं, और नॉर्मल जनरल हाउस वाइफ्स भी वहाँ पर आ रही होती हैं, ताकि एक नेटवर्किंग भी हो लोगों की, क्रॉस कोलैबोरेशंस बिल्ड हो। लाइक फॉर एग्जांपल एक ब्यूटी कंपनी आ रही है तो other salons can reach out to them, different customers can learn more about grooming। तो इस तरीके से we are doing that।
उसके अलावा हम कॉर्पोरेट्स पे लेकर जा रहे होते हैं, लाइक आई मेंशन अबाउट, तो वी कीप ऑन डूइंग, वी डू सर्टेन ऐप एक्टिवेशन कैंपेन्स एज वेल। अभी रिसेंटली वी डिड वन एट स्क्वायर वन मॉल। वहाँ पर वी हैड अ वीक लॉन्ग इवेंट जहाँ पर हमने हर दिन डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाया था और लोगों से पर्सनल ग्रूमिंग रिलेटेड, उनकी स्किन कंसल्टेशन से रिलेटेड हमने सेशंस करे थे, उन्हें कंसल्टेशंस प्रोवाइड करी थी, डिस्काउंट्स ऑफर्स हुए थे। तो वी डिड अ लॉट ऑफ दीज एक्टिविटीज। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कमेंट में कि अमीर बख्श साहब हैं, वो कह रहे हैं कि उनको कुछ डिस्कस करना है रिगार्डिंग अफिलिएशन, तो वो आपसे कैसे रीच आउट कर सकते हैं? जैसे अभी हमारी ऑडियंस अगर आपसे रीच आउट करना चाहेगी तो आप कोई अपना ईमेल इस तरह का कुछ उनको बता सकती हैं? ओके, सो हम लोग अवेलेबल हैं लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, वी आर एक्टिव देयर। आप वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी रेलिवेंट क्वेरी होगी उसके अकॉर्डिंगली वो सर्कुलेट हो जाएगी टू द रेलिवेंट टीम मेंबर और फिर आपको रीच आउट कर लेंगे। ओके, आई बिलीव कि अमीर बख्श साहब आपको अपना आंसर मिल गया होगा। यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विथ हर। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो हमें देख रहे हैं और उनको अगर ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो आप लोगों ने जब अपनी ऐप डेवलपमेंट की तो आप लोग के जो पेन पॉइंट्स थे वो क्या थे, या फिर आप लोगों को क्या डिफिकल्टीज फेस की? ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था, बिकॉज मेरा बिल्कुल भी कोई टेक बैकग्राउंड नहीं है, आई मीन मैं बिजनेस बैकग्राउंड से टेक कंसल्टेंसी करती हूँ, ईआरपी कंसल्टेंसी करती थी, बट टेक्निकल कोडिंग एंड एवरीथिंग दैट वाज एन इशू। तो मैंने क्या किया, बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज वर्किंग, तो मैंने अपने सर्कल में रीच आउट करना शुरू करा था लोगों को कि मुझे ऐप डेवलप करनी है। एंड ऑनेस्टली शुरू में आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, एक दो दफ़ा ये भी हुआ वी डेवलप समथिंग और फिर इट डिडंट वर्क आउट विद द पर्सन और टीम वी वर वर्किंग विद। then we then later on obviously उससे मेरी लर्निंग आई थी, किन इन एरियाज में फोकस करना है, हाउ स्कोप डिफाइन करनी है, सारी चीज़ें माइलस्टोन्स लेकर चलने हैं। एंड देन आई गॉट लकी विद माय टेक्निकल टीम कि वो अब शुरू से स्टार्ट से मेरे साथ इन्वॉल्व हुए हुए हैं एंड वी हैव बीन वर्किंग। तो अब मेरे पास इन हाउस टीम है, देयर सर्टेन पार्ट जो हमने आउटसोर्स भी किया हुआ है, we are working along that, and obviously we set up the timelines accordingly. They're the best people who guide me obviously technique app development के scenarios में, but it's always best कि आप जब app development पे जा रहे हो, don't try to make a perfect product कि मतलब डे वन से आपकी बेस्ट चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स ये चीज़ ना आपका बहुत टाइम वेस्ट कर रही होती है। आप माइलस्टोन्स लेके चलें कि एक प्रोडक्ट को अगर मुझे लॉन्च करना है तो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स जो मैं पहले लॉन्च करूँ, एंड देन हम उसमें एनहांसमेंट्स करते रहें। एंड ऑब्वियसली जिस तरह से टेक्नोलॉजी डे बाय डे एक्सपेंड कर रही है, चेंजेस आ रहे हैं, ऑब्वियसली यू हैव टू स्टे अपडेटेड टू दैट दोस ट्रेंड्स एंड एवरीथिंग। तो वो वाली चीज़ आप फॉलो करें, बट फॉर श्योर डेफिनेटली अपने माइलस्टोन ज़रूर रखें कि इस सर्टेन पीरियड में, और उसको मॉनिटर करें फ्रीक्वेंटली कि ताकि आप एक डेफिनेटली, कर रहे हो। या डेफिनेटली दैट्स रियली ट्रू। इवन हर हर एक डिपार्टमेंट में, या फिर आप कह दें हर एक जो है वो करियर में हमें अपने माइलस्टोन्स रखने चाहिए, और वो स्टेप बाय स्टेप अचीव होते हैं, एकदम से आप सक्सेस नहीं ले लेते। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है, बुक माई स्पॉट के ज़रिए फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं? जैसे हमारे पास फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट या फिर जो ग्रूमिंग सर्विसेज होती हैं, ओके, तो सो आप लोग क्या फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी? या बिल्कुल, जी, बिल्कुल। हम लोग फ्रीलांसर्स को भी ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं, फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट, फ्रीलांस हेयर स्टाइलिस्ट, ये सब हमारे पास ऑलरेडी हैं भी, एंड वी सपोर्ट देम। हम उन्हें ऑब्वियसली कुछ इंसेंटिव्स भी दे रहे होते हैं, डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं ऑन आवर ऑनबोर्डिंग फी। तो बिकॉज़ वी रियली बिलीव, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म बनाने का मकसद ही ये था, मतलब हाई एंड सैलून्स के पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, दे कैन इन्वेस्ट, बट टू प्रोवाइड ऑल दीज पीपल अ प्लेटफॉर्म जहाँ ये फर्दर अपने आप को मार्केट करें, स्केलेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं,
अपने बिजनेस के ऊपर वो अपना काम पे फोकस करें और हम उनके बिजनेस एक्सपेंशन में हेल्प करें. So yeah, we're working on that, and it's not just obviously Bookmastpod directly is supporting the beauty freelancers and everything, but indirectly ये जैसे पैफ्ला के भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे, आई एम श्योर, जो फ्रीलांसर्स हैं, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी है क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़रूरत है सेल्फ केयर पे फोकस करने की, ग्रूमिंग्स पे फोकस करने की. आई मीन हम सब कर रहे होते हैं, बट इट ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस. और आपका भी इस ऐप पर आएंगे आप लोग, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे आपका टाइम भी सेव होगा. आपको डिफरेंट डिफरेंट सैलॉन्स की ब्राउजिंग नहीं करनी पड़ेगी. वन ऐप, वन विंडो पे यू कैन बुक अपॉइंटमेंट एट योर कन्वीनियंस. हमारे पास डिस्काउंट्स और डील्स होती हैं. हम अभी पैफ्ला मेंबर्स के लिए भी स्पेशल डिस्काउंट डिस्कस करेंगे. तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं. या तो हुमा, आप लोग स्मॉल स्केल सलोन्स को या स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं या फिर जो वेल नोन सलोन्स हैं सिर्फ उनको ही मतलब अपने साथ कोलैबोरेट करते हैं और पिचिंग करते हैं? ओके, हम बिल्कुल उनको भी ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ सर्टेन क्राइटेरिया जो हम उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता. तो हम उनसे ऑब्वियसली, हमारे पास या एक देयर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड दैट वी इंश्योर दैट वो सारी चीज़ें मीट हो रही हों फ्रॉम द क्वालिटी परस्पेक्टिव, हाइजीन परस्पेक्टिव, बिकॉज सैलॉन इंडस्ट्री में इट्स वेरी नेसेसरी. तो हम वो सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं. बट येस, वी डू 100%. वी आर ऑल्सो स्टार्टअप. भी हम लोग ने भी एक स्टार्ट किया था, तो वी डेफिनेटली डू सपोर्ट द अदर स्टार्टअप फ्रीलांसर्स जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर आ रहे होते हैं. अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भी आएँ तो यू विल सी कि उसमें डिफरेंट टीयर्स के सैलॉन्स अवेलेबल हैं. एंड आप उसमें या देख के आपको फिगर आउट हो सकता है. आप प्राइस पॉइंट के ऊपर भी आप डिफरेंट सारे कंपैरिजंस कर सकते हैं. तो इट्स नॉट कि सिर्फ जो है ना, इट कैन बी इकोनॉमिकल एंड इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी. तो ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो इन चीज़ों पर हम थोड़ा सा एस्पेक्ट देख रहे होते हैं, बट वी डेफिनेटली हैव देम ऑन आवर प्लेटफॉर्म. या डेफिनेटली. आपको क्या लगता है पाकिस्तान में सेल्फ केयर रिलेटेड सर्विसेज को लेके लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है या नहीं? मतलब लोग सेल्फ केयर और ग्रूमिंग की साइड पे आ रहे हैं या नहीं? और अगर हाँ, तो क्या बुक माई स्पॉट का कोई रोल है उसमें? ओके, डेफिनेटली अब ट्रेंड चेंज होने लगा है. लोग फोकस करने लगे हैं अपने ऊपर. एंड ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें नहीं हो जाती. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. बट यस, अब लोग अपने आप पर फोकस करना शुरू हो गए हैं, अपने पर्सनल ग्रूमिंग पर. दैट्स वाई जब मैं बोल रही हूँ कि हम लोग कॉर्पोरेट पे भी जाते हैं, हम वहाँ पर इन्हीं अवेयरनेस के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं कि हम किस तरीके से लोगों को ये बात कम्युनिकेट करें कि हाउ दिस कैन हेल्प. और ये नहीं होता कि बस एक वन टाइम हमने सेशन कर लिया एंड ख़त्म. हम उनके साथ रेगुलरली कांटेक्ट में होते हैं. हम उन्हें नोटिफिकेशंस दे रहे होते हैं कि वो कौन कौन सी बेस्ट चीज़ें अवेल कर सकते हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म. सो दिस इज़ हाउ वी आर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग. एंड आई वोंट से कि अभी हमने बिल्कुल एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट बुक माई स्पॉट ने क्रिएट कर दिया होगा टू इम्पैक्ट पीपल्स लाइफ. बट येस, वी हैव मेड अ लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर श्योर इन दिस. इन नॉर्मल कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे मैंने कहा आपको, हम लोग मासेस को रीच आउट कर रहे होते हैं थ्रू ब्रांड एक्टिवेशन. कॉर्पोरेट में हम लोग रीच आउट कर रहे होते हैं एंड उधर ही हम लोग इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं. और नॉट जस्ट दैट, हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी, सारे सोशल मीडिया पे, इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं कि हाउ सेल्फ केयर कैन हेल्प पीपल. इट्स नॉट कि जब आप बस जाएं अपॉइंटमेंट बुक करें. इट्स ऑल, at the end of the day, it's all about um, keeping your mental health or your physical being in the best possible manner, because ये आपका ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा एसेट आपका यही है. आप अपने आप पे फोकस करें. डेफिनेटली दैट्स रियली ट्रू. और लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. और आजकल एवरीथिंग इज़ अबाउट सेल्फ केयर.
सो मैं अपना ये वेबिनार एंड पे लाते हैं। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि बुक माई स्पॉट जो है सोशल कॉज के लिए क्या काम कर रहा है? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या फिर किसी स्मॉल स्टार्टअप को सपोर्ट करने में क्या काम कर रहा है? ओके, सो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, फ्रीलांसर्स को हम लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, जहाँ हमें लगता है कि दे नीड आवर सपोर्ट, उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने में। दैट्स वन थिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन, वहाँ पर हम कर रहे होते हैं। देन ओवरऑल इन द फील्ड ऑफ यही नॉलेज इनकलकेट करने में, ओवर द पर्सनल ग्रूमिंग एस्पेक्ट्स, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। नॉलेज ट्रांसमिशन में इवन जहाँ पर हमें लगता है कि कहीं पर हमें ग्रूमिंग और ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पर अपने बेस्ट एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, जो कि दिस समथिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन एट द मोमेंट, कि हम बाकी जो बिल्कुल अभी ग्राउंड अप से स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें सपोर्ट चाहिए, हम उनकी ट्रेनिंग्स पे फोकस करवाएं, उन्हें कंसल्टेशंस अपने डिफरेंट टॉप टियर एक्सपर्ट से दिलवाएं, ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो क्रॉस कोलैबोरेशंस भी चल रही होती हैं बिटवीन डिफरेंट सैलॉन्स, और सैलॉन के साथ डिफरेंट फ्रीलांसर्स की, या जो भी बिल्कुल इनिशियल अभी स्क्रैच से स्टार्ट करें और दे नीड सम गाइडेंस। तो ये मीटअप्स वगैरह करवाने का भी मकसद यही है, कि हम वहाँ पर ग्राउंड अप पे ही एक कम्युनिटी बिल्डिंग करें इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, क्योंकि ये एक ऐसी वो है चीज़, सैलून इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, ग्रूमिंग इंडस्ट्री, जहाँ से आप बहुत आराम से यू कैन अर्न ऑन योर ओन। आप थोड़ा सा सीखें, उसमें अपनी नॉलेज करें, एंड काफ़ी सारी चीज़ें फिर डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह से सीख कर आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इट्स नॉट कि जो है या जिसके पास बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी और समथिंग, वो इस इंडस्ट्री में आ सकता है। बहुत सारे यूज केसेस हैं हमारा, अगर आप कराची में देख लें, इतने सैलॉन्स हैं, एंड देर माशाल्लाह से अर्निंग अलॉट इन दिस इंडस्ट्री। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस कि हम ट्रेनिंग्स और ग्रूमिंग्स और कंसल्टेशंस इन सब पे काम करें। या सो अभी मैं अपने ऑडियंस को यही बताना चाहूँगी, आज हमारा बुक माई स्पॉट के साथ वेबिनार करने का मकसद ही यही था कि हम बताएं कि इज़ जस्ट नॉट एन बुकिंग ऐप ऑफ सलोन। आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों को बता सकते हैं किस तरह से एक स्टार्टअप, बुक माई स्पॉट इज़ ऑल्सो अ स्टार्टअप, राइट? तो किस तरह से एक स्टार्टअप को हम लेकर आ सकते हैं मार्केट में, और किस तरह से ऐप डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। तो ये सारे एरियाज थे जिन पे आज हमने बात की है। बट हमने एक क्यूरियोसिटी बिल्ड की थी अपने फेसबुक पोस्ट में हमारी ऑडियंस के लिए, कि आप एक सरप्राइज देने वाली हैं उनको एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आखिर वो सरप्राइज है क्या? ओके, सो बेसिकली जितने भी मेंबर्स अभी देख रहे हैं, वी हैव अ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कोड फॉर पेफ्ला मेंबर्स जो हम दे रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स अ टाइम बाउंड, और हम वो फर्स्ट 100 कस्टमर्स को दे रहे हैं व्हेन दे बुक थ्रू आवर एप्लीकेशन। द कोड इज़ ऑब्वियसली पेफ्ला, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जब आप ऐप पर जाएंगे। ऐप पर आप लोग डिस्काउंट, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करा रहे होंगे, आप सबसे पहले डिस्काउंट कोड अपना डाल दें, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोग की अभी ये डील्स एप्लीकेबल हुई हुई हैं ऑन दिस पर्टिकुलर कोड। वहाँ पर आप जाके डील सेलेक्ट करेंगे, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग आउट द डील आप चेकआउट करेंगे, और एंड यू कैन अवेल दोस्त। वो फर्स्ट 100 customers who will book through it, we will be giving out to them. So yeah. सो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आपने इतना ओपनली डिस्काउंट कोड भी बता दिया। एंड आई गेस 100 बहुत छोटा नंबर है, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह फिल हो जाएगा, और लोग ऑब्वियसली इतनी आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपकी ऐप को यूज़ करना चाहेंगे, और स्पेशली ये डिस्काउंट अवेल करना चाहेंगे। वैसे भी आई गेस बहुत ज़्यादा शादियों का सीज़न चल रहा है, तो एवरीवन मस्ट गो टू द सलोन्स, राइट? सो थैंक यू सो मच हुमा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। For एंड sure. आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, अपनी इनसाइट्स और एक्सपर्टीज उनके साथ शेयर की।
मैं अगेन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ। इवन मैं अपनी टीम का शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने ये वेबिनार प्लान किया, ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे साथ हमारे डिज़ाइनर्स थे जिन्होंने पूरी इसकी मार्केटिंग की, हुनैन, महाम, हमारे सीईओ साहब तुफैल, इन सब का मैं थैंक यू करना चाहूँगी एंड आई होप हम फ्यूचर में भी और अच्छी चीज़ों पे कोलैबोरेट करें और अपनी ऑडियंस के लिए और इनिशिएटिव्स लेकर आएँ। Thank you so much. Thank you for inviting. For थैंक यू sure. सो मच। या, अल्लाह हाफ़िज़। Hafiz.